Hello friend, today we are going to discuss about the Werner's theory of coordination compounds. In last video we have already discussed about the coordination compounds, what is coordination compounds and different terms involved in coordination compounds such as central metal ion, उसके बाद ligands, okay, central metal ion, ligands, then coordination number, then coordination स्फीयर. ओके, तो ये जो 4-5 टर्म थी हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या की डिस्कस की. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. मींस द one of the scientists, it is known as Alfred Werner's, he put forth one of the theory of coordination compound and he has given lot of principles or postulates of this theory. The basic postulates of this theory, postulates of Werner's theory. In coordination compound, there is one of the central metal ion or central metal ion, and there are number of ligands surrounded to this central metal ion. In this square bracket, there is a central metal ion and ligand are present, and this square it is known as coordination sphere. Okay, so how the metal and ligand are attached with each other and what is the nature of metal, that is central metal ion. This theory gives the different postulates. First postulate is that in a coordination compound, there is a metal and ligands are present. Metal have two types of valency. First is primary valency and second is secondary valency. Okay. In a coordination compound, there is a central metal ion and number of ligand, and the central metal ion possess two types of valency. First is means metal, that is central metal ion possess two types of valency, that is primary valency and secondary valency. यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो टाइप की जो सेंट्रल मेटल आयन है, वो सेंट्रल मेटल आयन की वैलेंसी कितनी है? दो टाइप की वैलेंसी है. पहली है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी. तो व्हाट्स अबाउट द प्राइमरी वैलेंसी? सो प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, CMIN, सेंट्रल मेटल आयन, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज नॉन डायरेक्शनल नहीं है, easily ionizable and always satisfied with negatively charged ions. देखो, first postulates of Werner's theory is that in the coordination compound there is a central metal ion and number of ligand are present, but the central metal ion possesses two types of valency, that is the primary valency and secondary valency. So what is primary valency? It is the primary valency of central metal ion is non directional नहीं है मगर आयोनाइजेबल है. अगर पानी में तुम डालो तो वो इजीली आयोनाइज हो जाएगी. ओके, एग्जांपल लेंगे हम. इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोबाल्ट अमाइन complexes, or in this coordination compound complex, okay, this is the one of the cobalt amine complex. ये वर्नर्स का ही कॉम्प्लेक्स के इस पे उसने स्टडी की. तो कोबाल्ट इज द सेंट्रल मेटल आयन एंड कोबाल्ट possess two types of valency. First valency attached with ligand and second valency outside the coordination sphere, and this type of chlorine it is known as which is attached by primary valency. मीन्स कोबाल्ट की यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है, किसको अटैच है? तो कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी दैट इज द क्लोरीन. तो व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी वैलेंसी? इट इज नोन एज oxidation state of central metal ion. It is also known as
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। यानी प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि सेंट्रल मेटल आयन के पास कितनी वैलेंसी है, तो 2 वैलेंसी है। उसमें से प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तो इट इज आयनाइजेबल है। जैसे कि ये कंपाउंड को अगर आपने पानी में डाला तो क्लोरीन आयन निकल जाएंगे। क्लोरीन आयन जो है वो कैसे अटैच है कोबाल्ट को, विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी वैलेंसी। वो क्या हो रही है, आयोनाइजेबल है। तो क्लोरीन क्या हो गया यहाँ, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वो इजीली आयोनाइजेबल है एंड ऑलवेज सेटिस्फाइड विद नेगेटिवली चार्ज आयन। जैसे कि नेगेटिव क्लोरीन है, इस नेगेटिवली चार्ज आयन से सेटिस्फाइड है। थर्ड वन, व्हाट इज मीन बाय थर्ड पोस्टुलेट, दैट इज नथिंग बट द सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ये जो थी ये नॉन डायरेक्शनल थी, ये डायरेक्शनल है। ओके, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज डायरेक्शनल इन नेचर। आयोनाइजेबल है क्या, नहीं, नॉन आयोनाइजेबल। नॉन आयोनाइजेबल यानी कोबाल्ट एंड अमाइन जो है, कोबाल्ट लिगेंड जो है अटैच है लिगेंड को, तो ये जो लिगेंड है वो सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच है, इसलिए वो छोड़ के नहीं जाएगा, वो आयोनाइजेबल नहीं है। बट डायरेक्शन ऑन द ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स ऑन दिस सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी एग्जैक्टली अपोजिट है। प्राइमरी वैलेंसी थी नॉन डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी है डायरेक्शनल। प्राइमरी वैलेंसी थी आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी है नॉन आयोनाइजेबल। ओके, एंड इट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर। कल हमने डेफिनेशन देखी, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन number, and secondary valency is equal to the coordination number of central metal ion, and it determine the geometry, of the complexes। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी ज्योमेट्री किस पे डिपेंड है, तो सेकेंडरी वैलेंसी पे डिपेंड है, प्राइमरी वैलेंसी पे डिपेंड नहीं। तो ये थे पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। पहला पोस्टुलेट है मेटल possess 2 types of valency, first is primary valency, second is secondary valency। okay, second, primary valency of central metal ion is non directional, ionizable, and it is always satisfied by negative ions। it is nothing but the oxidation state of central metal ion। या ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेंगी सेंट्रल मेटल आयन की, उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट की उतनी ही उसकी प्राइमरी वैलेंसी रहती है हमेशा। जैसे कि एग्जांपल है कोबाल्ट अमाइन, और जो कॉम्प्लेक्स के बाहर जो क्लोरीन एटम है वो तीनों की तीनों क्लोरीन एटम प्राइमरी वैलेंसी से अटैच है। उसके बाद है सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेकेंडरी वैलेंसी दैट इज द कोबाल्ट, इट इज डायरेक्टली अटैच विद सेंट्रल मेटल आयन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मींस सेकेंडरी वैलेंसी जो है, ये जो अमोनिया है, कितने अमोनिया है यहाँ पे, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल है। 6 अमोनिया मॉलिक्यूल कोबाल्ट को कैसे अटैच है, तो विद द हेल्प ऑफ, ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल है कोबाल्ट को कैसे अटैच है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना ही कोबाल्ट की क्या हो जाएंगी, सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ पे कितने अमोनिया मॉलिक्यूल अटैच है कोबाल्ट को, यानी 6 लिगेंड आर अटैच विद कोबाल्ट, means the coordination number is 6, hence the coordination number कितना है, 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी भी कितनी होंगी, 6। ओके, तो सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो ये था कॉम्प्लेक्स, और ये सेकेंडरी वैलेंसी ऐसे दिखाते हैं और प्राइमरी वैलेंसी ऐसे दिखाते हैं डॉटेड लाइन से। यहाँ पे एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन। देखो 3 क्लोरीन एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच नहीं है, मगर 6 अमोनिया मॉलिक्यूल, ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखा है यहाँ पे। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखा है मैंने, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखा है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे आप, सेकेंडरी वैलेंसी। दिस इज सेकेंडरी वैलेंसी, दिस इज प्राइमरी। देखो कौन सा जल्दी छोड़ के जाएगा, क्लोरीन एटम डॉटेड लाइन से दिखा है, तो पानी में डाला या सॉल्वेंट में डाला तो क्लोरीन एटम निकल जाएगा। बाकी क्या रह जाएंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल। कितने अमोनिया मॉलिक्यूल है, 6। कितने बॉन्ड है, 6। तो कितने वैलेंसी हो जाएंगी, सेकेंडरी वैलेंसी, जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है उतनी वैलेंसी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मेटल का, 6 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएंगी। ओके, तो प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन स्टेट और इट इज नॉन डायरेक्शनल, इट इज इजीली आयोनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल, नॉन आयोनाइजेबल, एंड इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। एंड द सेकेंडरी वैलेंसी, ये जो 4th जो पोस्टुलेट्स है,
that is the fourth postulate. Secondary valency of central metal ion is equal to coordination number, gives information or directly gives information about geometry of the complexes. आता ज्योमेट्री कैसी रहेंगी देखो, अगर आपके कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा, यानी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी रहेगी, 2 रहेगी, तो ज्योमेट्री में भी और बिकम लीनियर ज्योमेट्री। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 हो जाएगा तो ट्राइगोनल ज्योमेट्री। ओके, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ये दो टाइप के कॉम्प्लेक्स बना सकती है, एक तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा या स्क्वायर प्लेनर। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 रहता है तो ज्योमेट्री शुड बी ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर में सेकेंडरी वैलेंसी, ये जो दिखा है मैंने 2 3 4 6, ये सब कोऑर्डिनेशन नंबर है, दैट इज द सेकेंडरी वैलेंसी है। और अगर सेकेंडरी वैलेंसी अगर 2 रहती है तो कॉम्प्लेक्स शुड बी लाइक दिस, लीनियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहता है तो कॉम्प्लेक्स शुड बी ट्राइगोनल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है तो कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल रहेगा या स्क्वायर प्लेनर रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 रहता है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। ओके, तो ये थे पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। ओके, तो ये थे पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स के पास कोबाल्ट अमाइन के कॉम्प्लेक्स बनाए उसने, ये था कोबाल्ट अमाइन 6 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड Cl3। उसके बाद सेकंड कॉम्प्लेक्स लिया उसने कोबाल्ट अमाइन 5 मॉलिक्यूल अमोनिया के लिए, एक Cl बीच में आ गया, Cl2। उसके बाद कोबाल्ट अमाइन 4 मॉलिक्यूल Cl2 एक ही बार रहेगा। कोबाल्ट अमाइन Cl3, देयर इज नो क्लोरीन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसमें बताओ सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 2 ही है, 6 है, सॉरी, जितने लिगेंड अटैच है, ये कोबाल्ट मेटल आयन, अमोनिया लिगेंड एंड क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कितने कॉम्प्लेक्स लिखे मैंने, 4। आपको बताना है कि नंबर ऑफ आयन कितने देंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ आयंस के बाद नंबर ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, यानी ये जो क्लोरीन है, अगर 3 मोल क्लोरीन होंगे तो 3 मोल AgCl बनाएगा। अगर AgNO3 अगर ये कॉम्प्लेक्स में डालते हैं, देखो ये कॉम्प्लेक्स को क्या करेंगे, सबसे पहले ये पहला कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट अमाइन बाय 6 Cl3 ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, इफ यू ऐड दिस कॉम्प्लेक्स इन वाटर सपोज, तो वाटर में क्या चला जाएगा, ये 3 क्लोरीन यानी 3Cl माइनस चला जाएगा। 3 माइनस चला गया तो ये कॉम्प्लेक्स तो टूटेगा नहीं, आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेवर लूज देयर आइडेंटिटी और नेवर आयनाइजेबल। ये 3 क्लोरीन यानी 3 आयन निकल गए, 3 क्लोरीन आयन, 3 नेगेटिव गए तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, जैसे कि आप ऐसे लिखते हैं NaCl, तो NaCl कैसा जाता है, Cl माइनस चला जाएगा तो Na पे उसके अपोजिट चार्ज आ जाता है, यानी नेगेटिव गया तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो उसमें से कितने नेगेटिव गए, 3 नेगेटिव चले गए, 3 क्लोरीन, तो ये कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यानी ये टोटल 1 आयन और ये 3 और 1, नंबर ऑफ आयन कितने मिले, 4 आयन मिले। कैसे देखें, देखो ये 3 और 1 4 आयन। कितने क्लोरीन बाहर है, जितने क्लोरीन बाहर है उतना ही AgCl के पीपीटी मिलेंगे। कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है बाहर के क्लोरीन ही प्रेसिपिटेशन मिलेंगे, बनाएंगे तो 3 AgCl पीपीटी ऑक्टेट। उसके बाद सेकंड कॉम्प्लेक्स बताओ, ये कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, ये 2 Cl माइनस के 2 आयन और ये कंप्लीट आयन, 2 और 1 टोटल 3। नंबर ऑफ आयन कितने मिले आपको, 3। AgCl के पीपीटी में ये क्लोरीन तो नहीं जाएगा क्योंकि ये लिगेंड बन गया। ये 2 जो बाहर क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, तो आपको 2 ही AgCl पीपीटी मिलेंगे। इसके बाद देखो यहाँ भी एक ही Cl है और एक कॉम्प्लेक्स है, एक Cl माइनस तो एक कॉम्प्लेक्स आयन, दैट इज देयर इज अ 2 आयन, means there is only 1 Cl outside the coordination sphere, hence it gives only 1 AgCl ppt। उसके बाद कोबाल्ट अमाइन 3 और 3,
यहाँ पे Cl बाहर कुछ भी नहीं और यहाँ पे चार्ज भी नहीं आ सकता क्योंकि छोड़ के कोई जा ही नहीं रहा, तो नंबर ऑफ आयन कितने मिलेंगे 0 और पीपीटी भी कितने मिलेंगे 0। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ कोबाल्ट अमाइन complexes, Werner's put forth one theory. It is called as Werner's theory of coordination compound, and he gives the 4 postulates. First postulate is the every central metal ion in the complex. एक जो complex है इसमें एक ना एक तो central metal ion रहता है। Every central metal ion in the complexes show 2 types of valency. First is primary valency like this, and second is secondary valency, that is ligand के साथ जो अटैच है। तो प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, देखो Cl3 निकल जाता है, तो प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल बट इट डज नॉट टेक पार्ट इन डायरेक्शन, it is always satisfied by negative ion Cl minus, it is always satisfied by negative ion. Second is secondary valency is the कभी छोड़ के नहीं जाता, नॉन आयनाइजेबल बट डायरेक्शनल इन नेचर, इट इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो कोबाल्ट को कितने अमोनिया अटैच है 6, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना रहता है उसमें सेकेंडरी वैलेंसी रहती है। ये था एविडेंसेस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। ओके, तो ये था वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ओके, आज के दिन इतना ही, थैंक यू।